Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher from Layal Public School. So, students, in our last class, we discussed about media and democracy, and we talked about balanced report and the independence of media. Why it is important to have an independent media. Okay, we talked everything about it. So now our today's topic is setting agendas. Agendas means goals, setting aims. Okay. So the media also plays an important role in deciding what stories to focus on and therefore decides on what is newsworthy. For example, the annual function at your school is unlikely to make the news, but if a famous actor is invited as the chief guest, then the media might be interested in covering it. By focusing on particular issues, the media influences our thoughts, feelings, and actions and brings those issues to our attention. Due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts, it is commonly said that the media sets the agenda. Now, obviously, in our surrounding, media plays a very important role. Okay, and now media also plays an important role in deciding what stories are important, what stories we have to present to our viewers, what is newsworthy. It is decided by media. Take an example. If in our school the annual function is is going to happen, the media will not media is not at all like very much take very much interest in that news. Okay, annual function ho raha, it's okay, but suppose in our school some chief some celebrity is coming or some important celebrity is coming as a chief guest, and they are invited as a chief guest, then media is very much interested in making the news, because that celebrity, or you can say that that politician, or whatever the person who is like very who is very important, or people are so much taking interest in the lives of those actors or politicians, then media will cover it because they are interested in covering it, and large number of people are interested in looking at the life of that particular famous actor, right? Actor or politician, whatever. So media हमारे थॉट्स को क्या करती है, मीडिया इन्फ्लुएंस करती है, बहुत ज्यादा चेंज करती है। ठीक है, हम जो सोचते हैं, कैसे सोचना है किसी के बारे में, ये मीडिया का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा जो है, यू कैन से इंटरफेरेंस है या फिर इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस इज द राइट टर्म हियर। फीलिंग्स, एक्शंस, क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अटेंशन में, क्या लेकर आना है, लोगों के सामने क्या लाना है, तो मीडिया उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉमनली सेड दैट जो मीडिया है वो क्या करती है, एक इट सेट्स द एजेंडा। ठीक है, हमारे एक गोल जो है, या फिर इट शेप्स आवर थॉट्स। ठीक है, हमारे थॉट्स को शेप देती है मीडिया। Yeah, the list of things which we all are going to discuss, what we all are going to discuss. The media is media is the very important media is a very important platform through which we can after viewing the channels or after going through the news, we are able to like set our mind, shape our mind according to and discuss the things related to it. Okay, so very recently the media drew our attention to alarming levels of pesticides in cola drinks. They published reports that indicated the high level of pesticides, and thus made us aware of the need of regularly monitor these colas according to international quality and safety standards.
They did this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe. In covering this story, the media positively helped us focusing on an issue that affects our lives and one that we might not even have been aware of it had not been for media reporting. So recently media ने क्या किया, it drew our attention to alarming levels of agenda pesticides in cola drinks. What is pesticide? Pesticide means pesticides means are they are the substance, or you can say they are the chemicals that are meant to control pest, like कीड़े ना लगे, ठीक है, उसमें कोई बैक्टीरिया ना आ जाए, या फिर कोई मतलब कि बैक्टीरिया ना आ जाए, पेस्ट ना आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो कोला ड्रिंक्स में जो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है वो बहुत हाई लेवल पे किया जा रहा है, ये मीडिया ने लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने मीडिया ने इस रिपोर्ट्स को पब्लिश किया कि जो भी हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं वो काफी ज्यादा जो है कोला ड्रिंक्स में यूज की जा रही है, ठीक है। तो हमें कोला कंपनीज को क्या किया था, रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ा कि वो जो भी इंटरनेशनल क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग क्या करें, अपनी उसके अकॉर्डिंग जो है पेस्टिसाइड्स या व्हाट एवर द केमिकल्स दे आर यूजिंग यूज अकॉर्डिंगली। एंड इसके बाद गवर्नमेंट ने जो एक बोल्ड डिसीजन लिया था कि कोलास जो है अनसेफ है हमारे लिए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अनसेफ है, तो इसमें भी मीडिया ने काफी हेल्प की थी, इस स्टोरी को उन्होंने कवर किया था एंड मीडिया हेल्प्ड अस फोकस ऑन इश्यूज जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है, ठीक है। और हो सकता है हम बहुत सारी चीजों से अवेयर नहीं है, तो उसे हमारे तक पहुंचाने में मीडिया बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। Now, there are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. And sometimes what happened, media जो हमारी लाइफ में बहुत ही important चीजें हैं उनको क्या करती है, उनको उतना ज्यादा फोकस नहीं करती है। For example, drinking water is a major problem in the country. Every year, thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water. However, we seldom find the media discussing this issue. A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week, in which clothes designers show their new creations to rich people, formed the front page headlines to all the newspapers, while several slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed. अब देखिए, ड्रिंकिंग वाटर जो है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे कंट्री की बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है एंड बहुत सारे हजारों लोग जो है वाटर बॉर्न डिजीजेस से क्या होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस उनको होती है और उनकी वजह से वो बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, दे डाई बिकॉज ऑफ दोज डिजीजेस हैपन ड्यू टू द लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ओके। बट वी सेल्डम फाइंड द मीडिया लाइक, क्या होता है कि हम बहुत बार ऐसा देखते हैं, मतलब सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग, मतलब हम बहुत ही रेयरली, सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, ठीक है, नॉट ऑफन, रेयरली, सेल्डम मीनिंग, सो वी रेयरली फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। ये बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलता है कि मीडिया इस टाइप की जो न्यूज है जो हमारी लाइफ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर रही है। एक बहुत ही वेल नोन जर्नलिस्ट है, ठीक है, जो लिखते हैं, ठीक है, जो न्यूज रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, उन्होंने लिखा कि जो क्लोथ्स डिजाइनर्स है, कैसे रिच पीपल जो है, अपने रिच पीपल को जो क्लोथ्स डिजाइनर है अपने न्यू क्रिएशंस जो है काफी दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, और वो फ्रंट पेज में एज अ हेडलाइन भी क्या है, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में आते भी हैं। बट उसी टाइम पे जो बहुत सारे मुंबई के जो स्लम्स थे वो डिमोलिश हो रहे थे। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, डिमोलिश मीन्स टू नॉक डाउन,
okay, to knock down, or you can say to destroy, it means demolish. तो बहुत सारे मुंबई में जो स्लम एरियाज थे वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, और उसी वीक फैशन वीक भी चल रहा था, तो मीडिया का फोकस फैशन वीक पे था, ना कि स्लम एरियाज में जो पानी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो स्लम एरियाज डिमोलिश डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उस पे नहीं था. So, as citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our lives, because it is through the media that we hear about issues रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या इश्यूज है, उससे रिलेटेड जितना भी हमें जानकारी मिल रहा है या जो भी हमें बातें पता चल रही है वो मीडिया से ही पता चल रही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है. द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट सेट्स एजेंडा. ऑब्वियसली मीडिया डिसाइड करती है हमें क्या दिखाना है, और इसी के थ्रू मीडिया एक एजेंडा जो है सेट करती है कि अब लोगों के बीच में हमें क्या डिस्कशन चलाना है, क्या बात पहुंचानी है. The government can at times prevent the media from publishing a story and is called censorship. I already told you about the censorship. Sometimes government prevent the media from publishing some stories and उसको हम क्या बोलते हैं, censorship बोलते हैं. Nowadays, media's close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by. Obviously, we already discussed it, because of the large business houses, media is not able to not able to represent a balanced report. Okay, it is difficult for media to present a balanced report. Given this, it is important for us to be aware that the factual information, it means the information which is based on the fact, जो ट्रू है, ठीक है, जो रियलिटी है, उसको हम बोलते हैं फैक्चुअल. तो जो हमारी वास्तविक इंफॉर्मेशन है, जो रियल इंफॉर्मेशन है, वो हमें इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट अ न्यूज रिपोर्ट प्रोवाइड्स इज ऑफन नॉट कंप्लीट एंड कैन बी वन साइडेड. बहुत बार हम देखते हैं कि वन साइडेड ही रहती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती ही नहीं है. We therefore need to analyze the news by asking the following questions. What are these questions? What is the information I am learning from this report? What kind of information I am learning from this report? ऐसी क्या information है जो मुझे इस report से मिल रही है? What information is not being provided? क्या information नहीं मिल रही है? From those point of view is the article being written? from whose point of view? किसके point of view से यह article लिखा हुआ है? Whose point of view is being left and why? किसके point of view जो important persons है और किसके point of view इसमें left out है और क्यों छोड़ दिए गए हैं? ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमें सोचना चाहिए whenever we are watching any news or reading any news from the newspaper. ठीक है, जब भी ऐसी कोई चीज होती है तो हमें ये सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में रखने चाहिए कि हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही है, और फिर इसे क्या करना चाहिए, हमें जजमेंट, उसके बाद हमें उसकी जजमेंट देनी चाहिए. Now there is an important term, social advertising. What is social advertising? Social advertisement refers to the advertisements made by the government or private agencies that have a larger message for society. सोसाइटी के लिए कोई भी एक लार्जर मैसेज है, बहुत ही बड़ा मैसेज है, ठीक है, जिससे कि हम सोशली हम अवेयर करवा पाए, चाहे वो गवर्नमेंट भी करवा सकती है, कोई प्राइवेट एजेंसीज भी करवा सकती है, उसको हम सोशल एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं. So the very recent example of social advertisement is related to the COVID-19. आपने जब से कोविड स्टार्ट हुआ है उसके बाद से जब भी आप किसी को फोन करते हैं, ठीक है, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, तो आप तो एक एडवर्टीजमेंट, अमिताभ बच्चन की वॉइस में एक एडवर्टीजमेंट आपको सुनाई देता है, घर से बाहर ना जाए, मास्क जरूरत पड़ने पे ही बाहर जाए, मास्क लगा के जाए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहे, हाथों को साबुन से धोते रहे. ये जो आपकी ये जो एडवर्टीजमेंट है अमिताभ बच्चन की वॉइस में, ये क्या है, सोशल एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि हमें ये क्या है, लार्जर बहुत सारे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन हमें पहुंचानी है, और
जब कोई भी लार्जर सोशल सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कोई भी लार्जर मैसेज को स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, तो और उसे हम क्या बोलते हैं, सोशल एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। हो सकता है हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू, फोन के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू हम क्या करें, ये सारी चीजें सोशल एडवर्टीजमेंट करें। द फॉलोइंग इज द सोशल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ मैन्ड एंड अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। अब देखिए, ये देखो, ये जो एग्जाम्पल आप देख रही हो, मैन्ड एंड अनमैन्ड क्रॉसिंग्स है। मैन्ड और अनमैन्ड का मतलब क्या होता है? मैन्ड का मीनिंग होता है कि हैविंग अ ह्यूमन क्रू, जहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, उसको हम मैन्ड बोलते हैं। अनमैन्ड मतलब जहां पे पॉपुलेशन नहीं रहती है। ओके, सो ये देखो, एट रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी। स्लो डाउन योर व्हीकल, स्टॉप द व्हीकल, लिसन केयरफुली, सी ऑन बोथ द साइड, दीज आर सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवेज में देखिए, पासिंग नेवर ओवर द अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग negligently is a punishable offense under Indian Railways Act 1989 section 161 की। ये जो अनमेंड है, ठीक है, और अगर आप अनमेंड क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग को आप क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, वो जैसे ये हम इसको क्या बोलते हैं नॉर्मली, ये जो गेट है, इसको अगर हम, गेट बंद है और इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या होगा, पनिशेबल ऑफेंस होगा, ठीक है। और किसी भी चीज के लिए आपको कोई कंप्लेन है, पैसेंजर कंप्लेन है या सिक्योरिटी हेल्पलाइन चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे नंबर भी दिए हुए। तो दीज आर द सोशल एडवर्टीजमेंट। सोसाइटी को अवेयर करवाने के लिए क्या होता है, ये सारे एडवर्टीजमेंट्स दिए जाते हैं। ओके, advertisements made by the government or the private agencies that have a larger message for society। सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ा मैसेज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। ओके, so this is all about this chapter class। So go through this chapter, read this chapter very carefully. If you face any problem or if you are having any kind of query, please do let me know. Bye bye, take care.